न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। वारिस पठान ने वक्फ बिल को बताया संवैधानिक। महबूबा मुफ्ती का उमर सरकार 3 साल बाद गोरखालैंड को लेकर गृह मंत्रालय से बातचीत शुरू। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वारिस पठान ने वक्फ बिल को बताया असंवैधानिक। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में बहुमत से पारित हो चुका है। आज 3 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था। निचले सदन में इस पर 12 घंटे बहस हुई। इसके बाद विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक पर कई तरह की चर्चाएं हुई। इस विधेयक का खंडन करते हुए AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने इसे काला दिन बताया। वक्फ संशोधन विधेयक पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, यह हमारे देश के मुसलमानों के लिए एक और काला दिन है। हमने देखा है कि जब से वे सत्ता में आए हैं उन्होंने केवल नफरत फैलाई है और यह कल उनके द्वारा दिखाए गए उदाहरणों में से एक है। यह पूरी तरह से एक असंवैधानिक विधेयक है। यह मुसलमानों पर सीधा हमला है और वे केवल हमारी वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक की प्रति फाड़े जाने पर उन्होंने कहा, उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया कि जब वे व्यक्ति थे तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कानून को फाड़ दिया था। उनके अंतरात्मा ने भी कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है। It's another dark day for the Muslims in our country. We have been seeing this. The BJP has come to power. They have only spread hatred towards the community. This is one of the examples they have showed it yesterday. This is totally unconstitutional bill. They have finished the democracy. What about the secularism of the country? This is a direct attack on the Muslims. Now they want to usurp our work property, which we won't allow. And as I rightly said, and I have said earlier also, and I reiterate that against this bill, we will continue our protests as per the Constitution. We will take the due course of law. We'll approach the courts, and whatever our seniors decide, we will follow that. But let me tell you, the BJP has shown that they don't follow the Constitution. They don't care for the minority of this country, and tomorrow they might pass this kind of bill for other community as well. Nobody knows, because they have shown that we have got the strength. We will do whatever we want to. This is nothing less than a dictatorship. So you have shown that, and the people of the country has seen it. So we say that we will keep our protest going on, and we will protest against this bill in a constitutional way. Let the seniors decide. Unless until Modi government takes back the law, we will continue our protest against this unconstitutional law. One side you are saying that you follow constitution, you believe in constitution, but in another way Mr. Owaisi told that bill in the parliament, so is it constitutional or not? He gave the example of Mahatma Gandhi, that he was aggrieved and so he tore away the bill, a law, South Africa, so he's conscious also said that bill is unconstitutional. The BJP is trying to divide the nation in the name of Hindu Muslims, in the name of Mandir Masjid, and so in the protest I am tearing apart the bill, and so he tear it apart. So what is the law? If I would have been in his place, I would also done the same thing, because no Muslim's conscience would allow to see to it that this kind of laws are being passed, such kind of draconian laws being passed in the country. I would have done the same thing. I would have in fact teared it and thrown it in the air. Because see, we won't accept this. This is direct attack on our community. This is direct attack on the things which belongs to our Muslims. This belongs to our orphans, belongs to our widows. This is Allah's property, given as in charity for the benefit of the Muslims. And bringing such kind of draconian law, the BJP government show their arrogance. They show they don't follow the law, they don't follow the constitution, and they just want to show that their dictatorship is before the nation. Yesterday the way Mr. Owaisi behaved in parliament, that was too aggressive, but the way Gaurav Gogoi, who is a Congress leader, he behaved too softly. He can't elaborate himself about the specific points. What do you say about the stand of the Congress? Well, I don't say this, but most of the people from the country, majority of them, I say, you will say because he's my party president, I am praising, but I will tell you, he's the best orator today in the country. And yesterday the speech which Owaisi sir gave in the parliament was superb, zabardast, 100 out of 100. And he explained why is the violation of Article 14, why is it the violation of Article 25, why is the violation of Article 26, and what harm it will cause to the Muslims, and why is it not proper for the democracy and for the constitution, why is it not proper for the secularism. Everything he explained yesterday in the parliament. Hats off to him, but the BJP government, you know, they don't listen to anybody, and they have passed a draconian law.
So one last question, after passing the bill in the Lok Sabha and if today the bill will also pass in the Raj Sabha, will you knock the door of the court or what you will do? As earlier we said that our seniors also have stated so that we will be moving the courts, we will hit the streets. As per the constitution, we will continue our protest unless and until the Modi government takes back this draconian law. Our protest will continue against the draconian law passed by Modi. अगली खबर, महबूबा मुफ्ती का उमर सरकार पर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को बने हुए 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक किसी ने उन्हें युवाओं की रिहाई या नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली पर एक शब्द तक नहीं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े असल मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और जनता के जनादेश के साथ मजाक कर रही है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सरकार को बेरोजगारी, गिरफ्तारी और युवाओं की परेशानियों जैसे गंभीर मुद्दों पर काम करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह पटवारी और VWD के तबादलों जैसे मामूली मामलों पर बड़े स्तर की बैठकें कर रहे हैं। बिल पेश हुई है पार्लियामेंट में, कैसे देखते हैं आपको? नहीं, देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं तो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी जमीनें हैं जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में, तो ये मुझे लगता है ये अब मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भाईचारे की वजह से जाना जाता था, गंगा जमुना तहजीब की वजह से जाना जाता था, एक जमहूरी निजाम की वजह से जाना, यहाँ आईन की पासदारी, संविधान को लोग फॉलो करते थे। आज सारा कचरे में फेंका जा रहा है और आज हमारा मुल्क जो एक आदर्श मुल्क होता था जिसको लोग देख के बोलते थे कितना खूबसूरत है, आज हमारा मुल्क जो म्यांमार है जहां वो माइनॉरिटीज को मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, उनको निकालते हैं, बिल्कुल उसी राह पे बीजेपी चल रही है। ये भूल जाते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है, कल इनकी सरकार नहीं होगी। यहां कांग्रेस ने 1947 से 50-60 साल राज किया और उन्होंने इस मुल्क को संजो के रखा, इकट्ठा रखा। यहां की जो हिंदुओं की आबादी है इस मुल्क की, उन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा रखा मुसलमानों के साथ मिलकर। आज ये जब चले जाएंगे तो मुल्क बर्बाद हो गया होगा। जिस तरह जियाउल हक ने पाकिस्तान में एक हंसते बसते मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा है, अभी भी पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। तो इस वक्त जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बिल्कुल ऐसा ही कर रही है, मुसलमानों का हक मार रही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, मुसलमानों को डिसएम्पावर कर रही है। इसका नतीजा जो है आने वाले वक्त में पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक मुसलमान और हिंदू ये एक दूसरे की कड़ी है, ये एक दूसरे को इकट्ठा रखते हैं, इस मुल्क को हिंदुस्तान बनाते हैं। और मैं ये भी साथ में कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरे मुल्क के लोग अभी हम कश्मीरियों को ताना देते हैं कि आपने कश्मीरी पंडितों का ख्याल नहीं रखा, आपने उनको वहां से निकाल दिया, और हमें अफसोस है, हमें शर्मिंदगी भी होती है। तो कहीं हमारे मुल्क के हिंदुओं को भी एक वक्त में शर्मिंदगी ना हो कि हमने मुसलमानों के साथ जब जुल्म हो रहा था तो हम तमाशा देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि हिंदू लोगों को सामने आके ये जो बीजेपी की जो कारकर्दगी है, जो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसको रोक लगानी चाहिए। अगली खबर, 3 साल बाद गोरखालैंड को लेकर गृह मंत्रालय से बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब 3 बरस के बाद गोरखालैंड की मांग करने वाले प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में सभी पक्ष मौजूद थे, मगर राज्य सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। बैठक में दार्जिलिंग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिस्ता शामिल थे। दार्जिलिंग से भाजपा विधायक नीरज जिम्बा ने बैठक को उत्पादक कहा, लेकिन निर्णायक नहीं माना। हालांकि उन्हें केंद्र सरकार से
ही उम्मीदें हैं, ये भी उन्होंने दोहराया। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने 2009, 2014 और 19 में अपने चुनाव घोषणा पत्रों में गोरखालैंड के निर्माण का समर्थन किया था। अब यहां से आगे केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत के बाद बैठक की अगली तारीख तय करेगी। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, भारत के महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव रुमवान पैते और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब 3 बरस के बाद गोरखालैंड की मांग करने वाले प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में सभी पक्ष मौजूद थे, मगर राज्य सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। बैठक में दार्जिलिंग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिस्ता शामिल थे। दार्जिलिंग से भाजपा विधायक नीरज जिम्बा ने बैठक को उत्पादक कहा, लेकिन निर्णायक नहीं माना। हालांकि उन्हें केंद्र सरकार से ही उम्मीदें हैं, ये भी उन्होंने दोहराया। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने 2009, 2014 और 19 में अपने चुनाव घोषणा पत्रों में गोरखालैंड के निर्माण का समर्थन किया था। अब यहां से आगे केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत के बाद बैठक की अगली तारीख तय करेगी। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, भारत के महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव रुमवान पैते और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।